wishing you all a very, very happy World Mental Health Day. I have been very impressed by all the work that World Health Organization or the WHO has been doing on mental health. So today, let's understand what WHO has to say on the whys, whats and hows of mental health. Okay? So for us to understand why mental health is needed, first we have to understand what is the definition of mental health as provided by WHO. So let's look at it. WHO says mental health is a state of well being in which an individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively, and is able to make a contribution to his or her community. So now this definition tells me the whys of mental health, isn't it? मुझे मेंटल हेल्थ चाहिए ताकि मैं अपना पोटेंशियल समझ सकूं, मैं समझूंगी तभी तो मैं उस तरफ काम करूंगी, है ना? मुझे मेंटल हेल्थ चाहिए सो दैट आई कैन डील विद द डे टू डे स्ट्रेस. कितनी स्ट्रेस है लाइफ में, आई शुड बी एबल टू डील विद इट, है ना? मुझे मेंटल हेल्थ चाहिए सो दैट आई एम प्रोडक्टिव इन एवरीथिंग दैट आई डू. मुझे मेंटल हेल्थ चाहिए सो दैट आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन टू द सोसाइटी बिकॉज दैट आर माई वैल्यूज. I want to contribute, I want to love people, I want to spread peace, I want to help people, isn't it? So, now that we have understood the definition of mental health as provided by WHO, we have also understood why it is important to be mentally healthy. So, let us understand how to prevent mental illness. Because we don't want to wait for us to get mentally ill and then rush for psychiatrists and therapists and counselors and doctors and medicines, isn't it? We want to understand the signs of mental illness so that we can prevent, okay? You can see here that WHO is saying that mental illness may lead to physical illness. अब देखिए यहाँ पे like regular headaches, heavy chest, back pains, regular upset stomach, ये सब चीज़ें जो है दिखाती हैं कि मेंटल इलनेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं. देन सम पीपल ऑल्सो हैव स्किन रैशेस, इन्फेक्शंस. ये सारी चीज़ें हमें अलर्ट कर रही हैं कि मेंटल इलनेस होने वाली है या हो गई है. कुछ और मेंटल इलनेस के साइंस हैं जैसे कि हम फोकस नहीं कर पाते, हमें गुस्सा बार बार आता रहता है, हम बात बात पर रो पड़ते हैं, हमें बहुत थकान महसूस होती है या भूख नहीं लगती है, और प्लस हम मोस्ट ऑफ द टाइम या तो फ्यूचर में रहते हैं या पास्ट में, हम प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, या फिर हम डिसएंगेज होने लगते हैं लोगों से. हमें अच्छा नहीं लगता है लोगों से बातें करना और बस मन करता है कि बस पड़े रहें, सोए रहें, बिस्तरे से उठे ही ना. may also start getting the feeling of hopelessness. मुझसे अब नहीं हो सकता है, ओह मैंने ऐसा क्यों किया, मैं कितना कमज़ोर हूँ, मैं क्या पागल हो रहा हूँ. जब हम मेंटल इलनेस की तरफ बढ़ते हैं ना, then we also start using some coping techniques. And what are those? Like we start yelling at people, we start avoiding people, we start staying in beds, and we may move to alcohol, tobacco, drugs and so many other things. क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है, आपने भी ये टेक्निक्स यूज़ की हैं? जब हमने ये साइंस देखे और जब हम ये कोपिंग टेक्निक्स अप्लाई करने लग गए तो हमें पता चलने लग गया कि ओ माय गॉड कुछ तो गलत हो रहा है. सो आपको वो कंटिन्यू नहीं करना है. आई नो दिस डिफिकल्ट बट लेट अस टेक सम बेबी स्टेप्स, लेट अस डू समथिंग अबाउट इट. इजंट इट? लाइफ इज वेरी प्रेशियस. सो व्हाट डू वी डू? व्हाट इज दिस बेबी स्टेप दैट आई कैन टेक? So WHO suggests that the first thing that you can do is start engaging. No, don't go and engage with people. I know it is difficult, but what you could do is engage with everything that you are doing, even the smallest thing like water. Okay? Like say, जैसे मैंने ये कप पकड़ा, okay? मुझे चाय पीनी है. अब जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं ना तो चाय डालते हैं, कट 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 करके पी लेते हैं. स्ट्रेस हो रहे हैं, दिमाग पे कोई लगाएगी. नो, व्हाट वी कैन डू इज लेट अस pour the tea in a cup that we love. Okay, like I just love this cup. मैं गोवा से निकल के आई हूँ तो जब मैं इसमें चाय डालती हूँ तो मुझे this reminds me of my Goa days. So I do that. Then जब मैं चाय पीती हूँ एक मैंने पिया, then I savor it. मुझे बहुत अच्छा लगता है वो टेस्ट.
मैं अपनी जीभ से उसको टेस्ट करूँगी, उसको फील करूँगी. मे बी आई कैन क्लोज माई आईज एंड स्माइल एंड feel, wow, this chai is so beautiful, so tasty. I'm so lucky to have this chai. You may find it ridiculous, funny, but believe me, this is the first step to start engaging. Engage with your chai, engage with your food. आप जब खाना खा रहे हो, just महसूस करो, my God, ये किस फार्मर ने बनाया होगा, किस फार्म में बना होगा, किस स्टेट ऑफ इंडिया से आया होगा, कैसे ट्रक से आया होगा, कहाँ पे फिर ये इतनी सारी प्रोसेसिंग हुई होगी. ओके, सो थिंक ऑफ दोज थिंग्स एंड स्टार्ट एंगेजिंग. जब आप कहीं पे भी बैठे हैं, लाइक से नदी के किनारे, लुक एट द वेव्स, पानी की लहरों को देखिए, उसे महसूस कीजिए. छोटी छोटी चीज़ें, बट स्टार्ट एंगेजिंग. ओके, और तरीके हैं जो WHO सजेस्ट करता है हमें एंगेज करने के लिए. जैसे हम अपने जब फ्रेंड से बात करें तो लेट अस कम्प्लीटली फोकस ऑन व्हाट शी और ही इज़ सेइंग. हम कम्प्लीटली अटेंशन दें उस पर, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस देखें. हम जनरली क्या होता है, दिमाग में हमारे कुछ कुछ चीज़ें चलती रहती हैं. वी विल हैव टू स्टॉप दैट. फिर उसी तरह से जब हम बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कम्प्लीटली खेलें, उसी में दिमाग लगाएं, अटेंशन कम्प्लीटली वहीं पे हो. उसी तरह से जब हम वॉशिंग कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, कम्प्लीटली कुकिंग कर रहे हैं, जस्ट खूब खुश हो, वाओ मैं अब आज फैमिली के लिए खाना बना रही हूँ, कितना टेस्टी बनेगा, मेरा बच्चा कितना खुश हो जाएगा, एट्सेट्रा. नाउ सेकंड मेथड जो WHO सजेस्ट कर रहा है, उसे कहते हैं ग्राउंडिंग टेक्निक. जब हमारे थॉट्स पूरे हेवायर हो रहे हैं, परेशान हैं, हम समझ नहीं आ रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, परेशान, that is when it is very important that we apply these grounding techniques. हम वैसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. सो हम डेली इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. बट जब भी आपका दिमाग बहुत परेशान हो, आप बहुत स्ट्रेस में हो, ज़रूर अप्लाई करिए these grounding techniques as suggested by WHO. नाउ ग्राउंडिंग के कुछ तरीके. एक तो है जो हम प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स. उसके बाद खड़े होकर के अपने फीट को हम प्रेस कर सकते हैं ग्राउंड पे. ओके, फिर धीरे से अपने आर्म्स हम स्ट्रेच करें और उसके बाद में हम आर्म्स को अपने पास ले आएं, उसको फिर उस पर प्रेशर दें. देन कुछ चीज़ें हैं जिन पे हम रीफोकस करना शुरू करें. लाइक 180 डिग्री हम अपनी गर्दन घुमाएं, लेफ़्ट में क्या दिख रहा है, सामने क्या दिख रहा है, राइट में क्या दिख रहा है, उस तरह से हम चीज़ों को देखें. हम ब्रीथ करें, एयर को कैसा लग रहा है, किस तरह की फीलिंग आ रही है. देन नोटिस करें छोटी छोटी चीज़ें उस समय. फिर हम टच करें, मेरे सामने जो भी चीज़ रखी हुई है उसे टच करें. सो जैसे पीपल का वेट ग्राउंडेड रहता है, कितनी शक्ति लेकर के वो बिल्कुल खड़ा रहता है, isn't it? उसी तरह से हम अपने आप को ग्राउंड करेंगे जब भी हम स्ट्रेस्ड फील करेंगे. ओके, इन तकनीकों को अपना करके. सो जब मैंने एंगेजमेंट और ग्राउंडिंग टेक्निक्स अप्लाई कर लिए तो क्या अब मैं ठीक हो जाऊंगी? सो WHO सेज नो. Grounding or engagement techniques do not make your emotional storms disappear. It just keeps you safe until the storm passes. So, अब मैं क्या करूं? So here comes the most important part, and that is understanding the values. What are values? Values are your deepest desires for the sort of person you want to be. For example, if you are a parent or if you have responsibilities caring for others, what kind of person do you want to be? Do you want to be loving, responsible, calm, courageous? Understand, समझिए अपने value को and live for your values. इन सब तरीकों को अपनाने के बावजूद अगर आपको फिर भी आराम नहीं मिलता है, then please do not hesitate to go to the therapist, psychologist, psychiatrist or anybody that you feel can help you out. जिस तरह से हमें बुखार होता है, हम दौड़ पड़ते हैं डॉक्टर के पास, है कि नहीं? तो फिर जब अगर हमें मेंटल इलनेस हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर हम क्यों नहीं जाते हैं थेरेपिस्ट के पास, हम क्यों नहीं जाते हैं काउंसलर्स के पास? और मैं CBT प्रैक्टिशनर हूँ और मैंने समझा है कि CBT मोस्ट ऑफ द इलनेस, मेंटल इलनेस को दूर करने में सक्षम है. जैसे कि भले आपको डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, OCD हो, ये सब चीज़ों पे बहुत फायदेमंद रहता है CBT. So before you go into medicines, I would request
दैट आप आजमाइए ये CBT टेक्निक. And I am a CBT practitioner. You can come to me. We can work together and work upon your mental illness. Okay? Also, prevent the mental illness. Okay?